اتفاق کرنے لگا تھا کہ اگر اجازت دیں فرزت بابر صاحب، تو ہمارے یہاں بہت اہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی اپنی ایفیلیشنز بھی ہیں، اور تو جے سالک صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور بوگیو صاحب ہیں، کیپٹن باسط ہیں، راز تیئی صاحب پانی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ مختصر بولنا چاہیں تو بیٹھیں. پھر حفیظ صاحب بھی. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی بولنے کا موقع دیا. رحمان صاحب سے لاہور کا جو ڈان اخبار کا دفتر تھا وہ ایک مرکز ہوتا تھا جہاں عثمانی صاحب اور جعفر ملک اور یہ عائیہ رحمان صاحب، ہم اسٹوڈنٹس کی طرح ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. لیکن مجھے ایک صرف واقعہ یاد آیا ہے وہ فلم کے حوالے سے، کیونکہ میں مشرق میں خواتین کی ڈائری لکھتی تھی اور سارے شہر کی رپورٹنگ وغیرہ سارا، تو ریڈیو والے بھی مجھ سے کہتے کہ آپ یہاں بھی پڑھ دیا کریں. تو ایک دفعہ فلم پہ وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو رحمان صاحب نے اور مجھے انہوں نے ایک فلم دکھائی. مجھے فلم کا نام یاد نہیں ہے، پتہ نہیں مولا جاتی کہ کون سے، آئی ڈونٹ ریمبر، بہت پرانی ہے یہ، 65 اور 70s کے درمیان کی بات ہے. تو جب فلم پہ بات کرنے کا وقت آیا تو رحمان صاحب اپنا بول رہے تھے اور میں بڑے آرام سے مگن ان کی باتیں سن رہی، اور وہ پروڈیوسر وہ حیران کہ یہ تو کچھ کہہ نہیں رہی، بیٹھی ان کو سن رہی ہے. انہوں نے رحمان صاحب کو اشارہ کیا تو رحمان صاحب کہنے لگے آپ نے بھی تو فلم دیکھی ہے، آپ بھی کچھ کہیے. اس کے بعد پھر تو باقی جو رحمان صاحب کے ساتھ تو پوری زندگی کا ایک ساتھ رہا ہے، اور کیونکہ میں اسلام آباد آ گئی تھی اور فیلڈ بھی فرق تھا، لیکن جو ہماری صحافتی سرگرمیاں تھیں ان سے رحمان صاحب کو تو جدا کیا نہیں جا سکتا. اور اتنی یادیں، اور وہ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے اور بہت اچھا، بالکل بندے کو دیکھ کے جیسا انسان ہوتا تھا ویسی وہ بات کرتے تھے. تو واقعی مجھے لگتا نہیں تھا کہ کبھی یہ ہم سے جدا ہوں گے. بہت ہمیشہ ان کی یاد ہمارے ساتھ رہے گی، ان کے کام، ان کا جذبہ اور ان کی تعلیمات سب. آئیے رحمانی صاحب، اپنا رحمان صاحب سے ملا ہوں، اور میں اس وقت کیونکہ میں پولیٹیکلی میں 88 میں اور 77 میں نے جدوجہد کا آغاز کیا، تو میرا واسطہ جو ہے ان کا اخبارات کے حوالے سے ہوا. تو میں اپنی خبریں دینے جایا کرتا تھا، کیونکہ میں وہاں سے 2 دفعہ کونسلر بنا، 4 دفعہ کمیشن کا ممبر بننے کے بعد ان کا اتفاق جو دیکھا ہے، جو ان کا پیار دیکھا ہے، جو ان کی محبت دیکھی ہے، انسانیت کے پر جو، اور خاص طور پر مائنارٹی سے بہت پیار کرتے تھے. اور ہم جیسے جو لوگ تھے نا، جو ایلیٹریٹ لوگ تھے، ان کے لیے تو بہت ہی ایک رہنما کا، رہبر کا کام کرتے تھے. بات وہ ہوتی ہے آپ نے سیکھا ان کی نالج، کیونکہ آپ نالج یافتہ، لیکن وہ غریبوں میں بھی، مظلوموں میں بھی، مجبوروں میں بھی اتنے اسٹیبلش جتنے شاید آپ کے دعاؤں میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سادہ لفظوں میں کچھ ایسے مغرور لوگ بھی ہیں جن کی دیکھے چہروں سے پتہ چل جاتا کہ ان کے اندر مغروری ہے، علم کی مغروری ہے. لیکن وہ اتنے انکسار تھے، اتنی ان کے اندر محبت تھی. اور خاص طور پر مائنارٹی کے لیے میں پراؤڈ ہوں کہ میں آج مجھے اچانک پتہ چلا، اور میں اس میں سارے کام چھوڑ کے، بیچ میں چھوڑ کے میں بیٹھ گیا، کیونکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا. آپ نے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا ہے، لیکن ہم ان سے اس لحاظ سے متاثر کہ وہ ہمیں پیار کرتے تھے اور مائنارٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ مائنارٹی اور مجبور لوگوں کے لیے کھڑے تھے. میں ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہم ان کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے. حالانکہ میں مجبور تھا کہ میں ٹائم کی آپ کو کمی ہے، لیکن چلے مائنارٹی کی ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے. اگر آپ نہ جہاں مائنارٹی کی ریپرزنٹیشن کریں تو آپ وہ جو ساری جتنی آپ تھیوری بتاتے ہیں تھنکنگ، اس میں بڑا فرق لگتا ہے، خلا لگتا ہے، کیونکہ آپ کی پریکٹیکل میں چہرے پر تاثرات سے پتہ چلنا چاہیے کہ محبت کوئی کرتا ہے. لیکن اگر کئی لوگ جو جاہل لوگ ہیں ان کو اس لیے آپ اپنی علم کے ذریعے، کلاشن کوپوں کے ذریعے ان کو دباتے ہیں. علم کو ذرا استعمال کیجئے جس سے محبت پیدا ہو.
पीस और लव और ह्यूमैनिटी को उजागर कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस बाबर साहब और मेरे तमाम सीनियर खवातीन, मुझे कतई मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने रूहानी बात के बारे में बैठ कर बात करूँ। बहुत सी बातें ज़ाहिर है कि जो दोस्त यहाँ बैठे हैं इन सब का ताल्लुक आईए रहमान साहब से मुख्तलिफ हवालों से है। मुख्तलिफ अदारों में उनके साथ काम किया होगा, उनके साथ सफ़र किया होगा, उनके साथ बैठे होंगे, लेकिन मेरा ताल्लुक मुझे ना उनके साथ सफ़र करने का कोई मौका मिला, ना काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे जो उनसे ताल्लुक वो रिश्ता जो मिला, मैं समझता हूँ कि वो इतना ताकतवर है, इतना तवाना है, इतना शानदार है कि उसको आप उसकी तशरीह नहीं कर सकते। और वो रिश्ता वो होता है कि जब आप किसी काज के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, अपनी एक सोच को फैलाने में अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, और एक ऐसी सोच जिसकी मुखालफत में फुलादी दीवारें होती हैं, जबर होता है, समाज की मुनाफकत होती है, तजादात होते हैं, तो ऐसे हालात में बाज़ लम्हे ऐसे आते हैं कि आप थोड़े से डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, रुक से जाते हैं, और यही खतरनाक लम्हा होता है जब तहरीकें जद्दोजहद वो हादसा पेश आ सकता है। आईए रहमान साहब मेरे लिए वो शख्सियत हैं कि जिनकी वजूदगी में हमने अपने ऊपर ये लम्हा कभी तारी नहीं होने दिया। जब भी इस तरह के मुश्किल लम्हे आए, मैंने खुद तहज़ीब के अहदेदार की हैसियत से, एक कारकुन की हैसियत से हमेशा उनसे राब्ता रखा, और जब भी कोई मुश्किल बात करता मैं, तो वो कहते भाई करो, छोड़ो, आगे बढ़ो। उनके नज़दीक ये मुश्किलात जिसका मैंने जिक्र किया जो हावी है वो कोई अहमियत नहीं रखती थी। और मुझे इस हवाले से भी आज के मतलब वजूद में जो अज़ियत का सूरत हाल है कि एक पहले मैं कहता था बंजर समाज है, अब मुझे लगता है समाज बांझ होता चला जा रहा है। निसार उस्मानी साहब चले गए, और इसी गुज़रे बेरहम दिसंबर और बरस में अब्दुल हमीद छाबरा भी चले गए खामोशी के साथ। महफाजुर रहमान साहब उनसे पहले, आइए राशिद साहब लाहौर से, बाकी एक पूरी रोशन सितारे हैं, वो दिए एक एक करके बुझते चले जा रहे हैं। आइए रहमान साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक कबीला था, एक सोच थी, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इन सब बुजुर्गों के साथ उनकी दरियाँ बिछाने से लेकर उनकी उंगली पकड़ने तक मुझे मौका मिला है। अगर मैं यहाँ आसमा जहांगीर को याद ना करूँ कि वो भी एक ऐसी ताकतवर आवाज़ थी जिन्होंने हमेशा मुश्किल, जहाँ बड़े बड़े दावेदार इंसानी हकूक़ के, आज़ाद अदलिया के, जमहूरियत के, लेकिन वो सब रेत की दीवारें होती हैं, छोटे छोटे टीले होते हैं, हवा के साथ फिर बिखर जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ें हला के रख देती हैं। ये दारुल हुकूमत, मैं इसको मकानों का शहर कहता हूँ, मकीनों का शहर नहीं है, हुक्मरानों का शहर है। यहाँ बात करना, इस खामोशी को तोड़ना,
मोटी दीवारों के पीछे ये जो हुक्मरान है, अशराफिया है, उनकी माथों पर शिकने बरपा हो जाना, वो उनका इस्तराब में मुब्तला हो जाना, इन्हीं आवाज़ों की बदौलत आज एक एक करके बड़ी बेबसी होती है। लेकिन मैं ये भी पुरुम्मीद हूँ कि आज भी हमारे साथ फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, हारिस हैं, नासिर ज़ैदी हैं, फौजिया शाहिद हैं, जे सादिक जैसे वो लोग हैं जिन्होंने इस पिंडी और इस्लामाबाद का मैं एक फ़र्क बता दूँ। लाहौर एक ज़िंदा शहर है, कराची भी एक भरपूर शहर है, लेकिन ये पिंडी और ये इस्लामाबाद ये पत्थर के शहर हैं। यहाँ जद्दोजहद करना, उसके रंग, उसके मानी कुछ और होते हैं। जब जब भी हम गुजरे, जय सालक शमे जलाकर हमारे इस्तेमाल करते थे। ये दिए आखिर में शायद अब सब हम फटफटाने वाले हैं, बुझते चले जा रहे हैं। आज आइए रहमान साहब को, और यहाँ मैं मिंटो साहब को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि ये एक सोच थी जो इन बड़े लोगों के जहनों में एक तरह का रंग था, एक तरह की खुशबू थी। अगरचे ये खुशबू उनके जाने के बाद ख़त्म नहीं हुई, ये फैलती रहेगी, क्योंकि वो खुशबू उनकी अपनी नहीं थी, वो कोई अपने उनके दान की खुशबू नहीं थी, वो किसी सिर्फ गुलाबों की फूल नहीं थी, वो पूरे चमन की खुशबू थी। वो पूरे समाज की बात करते थे, वो इंसानी हकूक़ की, इंसानों की इज्जत जो जिल्लत से दो चार हैं उनकी बात करते थे, वो दर्द को महसूस करते थे। आज मुझे बताएं कि दर्द को महसूस करना क्या होता है? कुछ नज़र आता है आपको अपने आसपास? मुझे खुशी है कि उनके वो शख्सियत थे कि जिनके लिए तो मैं सोचता हूँ कि लियाकत बाद भी कम एक मैदान होता कि उनको हम खराज तहसीन पेश करते। मैं आखिर में सिर्फ यही सवाल छोड़कर जाता हूँ कि हम अपने इन अजीम लोगों को जब वो जिंदा होते हैं उन पर कितनी तवज्जो देते हैं, उनकी वीरानियों में, उनकी तन्हाइयों में कितना हम कभी उनका दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सोचिएगा ज़रूर। मैं फरतुल्लाह बाबर साहब का इस हवाले से भी इंतहाई मशकूर हूँ कि इस तवील सफ़र में ये लोग हमारे साथ हैं। आइए रहमान साहब जिंदा थे, जिंदा रहेंगे, उनकी सोचें समाज को रास्ता दिखाती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत मसाइल है जिसकी वजह से पासपोर्ट नहीं आ रहे और हमारा सारा दिन वहाँ बागा बॉर्डर पर गुजरा। और जब हम वहाँ से बाई फुट चले गए तो तब आइए रहमान साहब हमारे साथ ही रहे उस दिन, और मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने ये देखा कि उनके माथे पे कोई इस तरह से शिकन नहीं है, कोई बेजारी के, थकावट के असरात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुँचे और इंडिया के लिए जब हम आगे रवाना हुए ट्रेन के ज़रिए, तो ट्रेन में बैठते वक्त भी मैंने देखा कि वो बंदा जो जहाँ पर और बहुत सारी बातें हुई, उनकी तवानाई की, उनके पैशन की, उनकी डेडिकेशन की, लेकिन एक बात जो मुझे मुतासिर लगी, मुझे लगा ये बंदा जो है एक मलंग दरवेश, आजी वाला, इंतसारी वाला, फ़कीर तबीयत का, इतना बड़ा नाम। तो मेरे लिए ये बहुत हैरत का मकाम था कि मैं उनके साथ सफ़र कर रही थी। और आज मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को भी मुबारकबाद दूंगी कि बहुत शुक्रिया कि आपने उनके साथ मुश्तरक अनासिर रखने वाले जो है साहिब सदारत फरतुल्लाह बाबर साहब को आज जो है सदारत दी है। तो ये भी उसी तरह के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये रवैया पाया जाता है कि किस तरह से आप प्रोटोकॉल और उन चीज़ों में चले जाते हैं। तो आज जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब को भी हम देखते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी आपको सड़क पर पैदल अकेले ही बगैर प्रोटोकॉल के चलते दिखाई देते हैं। और जो जनाब आलिया रहमान साहब थैंक यू, आलिया रहमान साहब जो थे, वो रहमान जो उनका नाम था, मुझे लगता है वो उस नाम की उन पर गहरी छाप थी। उनकी वज़ादारी देखें, उनकी तबीयत देखें। हम 4 दिन वहाँ पर इलाहाबाद में रहे। चौथे दिन जब वापसी हुई तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर देखा, वहाँ पर बहुत गंदगी थी।
मुझे लगता था मैं यहाँ पर कैसे खड़ी हूँ, बार बार मैं अपना दुपट्टा अपने नाक में दे लेती थी। लेकिन मुझे हैरत है कि आईए रहमान साहब जो है वो आराम से खड़े थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। और वहाँ पर हमने उनके साथ तस्वीरें भी बनवाई। अली इमरान से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, अली इमरान ने कहा अरे ये तो वो बंदा है कि जिसको अगर कहीं पर इनके साथ इनके साथी हो, इनको चारपाई न मिले, ये फर्श पे लेट जाते हैं। ये इस तरह नहीं होते कि ये कहें कि मुझे कोई इस तरह की चीज़ मिले। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि अक्सर हमें ये होता है कि सहाफ़ियों को कि जब हम किसी से मिल रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है स्टोरी करनी है। 2 साल पहले जब मैं गई, मुझे वुमेन डेवलपमेंट पे स्टोरी करनी थी, सेमिनार में लंच ब्रेक हुई, मैंने जाके आईए रहमान साहब से कहा कि सर प्लीज़ मुझे एक स्टोरी करनी है। उन्होंने कहा कि चलो अभी चल के मैं तुम्हें जो है, तो मेरे लिए हैरत थी और उन्होंने उसी वक्त जाके मेरे साथ डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे वो स्टोरी दे दी। तो जब भी आप उनके साथ फ़ोन पे रब्ता करते थे और वो ऐसी शख्सियत थे कि इतनी उम्र के होने के बावजूद उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। आप एक बार फ़ोन करते थे और उसके बाद आप उनको याद होते थे, और जो वो कमिटमेंट करते थे वो भी उनको याद रहती थी। 12 अप्रैल को जैसे ही 10-11 बजे मुझे पता चला सबूक सैयद की फेसबुक से, तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने अहमद सलीम साहब को फ़ोन करना चाहा तो उनका फ़ोन आ गया और अहमद सलीम साहब रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। मेरी किताब का दिबाचा लिख रहे हैं तो मैं फ़ौरन उनके यहाँ चली गई, तो वो वहाँ बैठ के रोए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बहुत अरसे का साथ था और मुझे ख़ास तौर पर फैज़ ने ये बात की थी कि तुम जो है आईए रहमान के साथ मिलते रहना। और मैं फैज़ की बात के बाद हमेशा आईए रहमान से मिलता रहा। अब वो चला गया तो मुझे लगता है कि सब कुछ चला गया, अब उसके बाद कौन होगा। तो बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि हम उनकी जौहद मुसलसल की बात कर रहे हैं और डायलॉग की बात कर रहे हैं और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अफसोस तो यही है, अभी शमसी साहब कह रहे थे पत्थर का शहर है, कि आप जमहूरियत के बहुत सारे लंबरदार भी आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसे डायलॉग करने ही नहीं देते। हर एक चीज़ में सियासत आ गई है। सियासत तो इबादत है, नेक काम के लिए, फलाह के लिए की जाती है, लेकिन अब हर एक चीज़ को सियासत के ज़िम्मे में ही लिया जाता है। तो मैं जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब से यही गुजारिश करूँगी, ये तो एक छोटी सी बात है, अभी मैं ओन शराफी साहब से भी बात कर रही थी कि क्या तजवीज़ होनी चाहिए। ये तजवीज़ तो है कि आईए रहमान साहब के नाम पे अवार्ड्स जो लोग ह्यूमन राइट्स पे काम करें, ये तो होगा ही होगा, लेकिन क्या आप ऐसा कोई इदारा जो कि डायलॉग कराए और कोई ऐसा इदारा आईए रहमान साहब के नाम पे अगर हो सकता है तो पीपल्स पार्टी क्या इसकी रेजोल्यूशन लेकर जा सकती है असेंबली में, तो वो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया। अंजुमन तरकीब मुसन्निफीन इस्लामाबाद की सदर नजमा रेहाना साहब मौजूद हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं कादर गौरी साहब, जो इस सारे इंतजामात में हमारे साथ। वैसे आप भी यहाँ तशरीफ लाइए, यहाँ खड़े हो हमारे साथ और आप अपना इज़हार ख्याल कीजिए। जी जी प्लीज़। शुक्रिया। सदर साहब की इजाज़त से, बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब से ही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तरफ से तमाम मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आईए रहमान जैसी अजीम हस्ती के लिए अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश किया। इस अजीम मोहसिन की इंसानी इक़दार के फ़रोग़ यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बेपनाह खिदमत हैं और जिनकी सारी ज़िंदगी अमली तौर पर इसी जिद्दोजहद में इबारत है। और हम सब के लिए मिशल राह है कि हालात जैसे भी हों, हमने इस अलम को थामे रखना है। ये मेरे लिए इफ्तिखार और तमानियत की बात है कि हमारे प्रोग्राम्स का इख्तिताम एक लेजेंडरी और मिशन के साथ जुड़ी हुई तहजीबी और आलमी सफ़े पर मुमताज़ और एक बड़ी कद्दावर शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से हुआ। आईए रहमान साहब एक हमजहत और तवानाई से भरपूर इंसान थे। आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से
बेइंतहा काम किया, जिसकी बिना पर आप जिंदे जावेद रहेंगे। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस कोविड के दौर में आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं प्रेस क्लब की इंतज़ामिया की भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें प्रोग्राम के लिए और ख़ास तौर से जमील साहब के लिए कि जिन्होंने हमें जगह मुहैया की। आप सब अहबाब की आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वारिस साहब। सर, ओवर टू यू।